in our studio. So I hope there are 23 students. We can wait for 2 3 minutes and then uh, maybe then we can start, because this is a quite good example, and based on this example only we can go ahead with the new practical, which is MLR. So just wait for 2 minutes so we can, let's say, if the more students can join, because then it will be beneficial for the students. Okay, so let's begin. So I'm not moving to the first practical part. Okay, so let me take one example which is related to the practical, and maybe you have seen this example in your uh, not practical, I will say, because I have not seen the SLR practical, but definitely you may come across such example. So let us consider the data set of cars. So I have this data sets of cars where I'm talking about my speed and distance. Okay, so if I whether is there is relationship between speed and distance or not. Okay, so can anyone tell me, if I want to know more about the data set car, what should be the code? Can anyone tell me what could be the code if I am just want to know about more about code? Yeah, so we need to write the help to get more about cars. So once I click and see, at the right bottom I make uh, open one window, and that window is relating to the data set car information. Okay, so this is saying this data is gives the cars speed of cars and distance taken to stop. Note that the data is recorded in 1920s. So this data is very old data. So you have to just consider the data will be old, and we have a 50 observations on the two variables. So we have a two variable and 50 observations, and that variable name is speed, which is numeric and given in some unit, distance again numeric, so both are numeric. So some, I think this much information is given to us, and this is some code they have seen how we can plot and so on. Okay, so basically what I'm trying to conclude here is, there is any relationship between speed and distance? That is my question, and I want to fit the data. I want to fit the data in terms of linear model. Okay, so I will just take the names. If I just take the names, I may come across, I have a two variable speed and distance. You can able to see the console. I have a two variable speed and distance.
So if I increase the speed, can I cover more distance? Or if I decrease the speed, then my distance will be the less. Means is there some relation exist or not? Okay. So in that scenario, one can go for the correlation. They can just find the correlation between your data set to more to know more about your data set. Okay, but assuming that all conditions satisfying, all homogeneity conditions satisfying, one can go with directly MLR models. Okay, so in that basically MLR model, I am applying very simple model, and one can go with that model. So here, first you what you need to do here. Now, since there are two variables, you can go with directly. You can go with directly the variables name. But what happens if you have the more variables? So writing the variables become a tedious task. Okay, writing a variables become a tedious task. So what we do, we can always code the data. We can always code the data. So let's say x is equal to distance. See, whatever I'm writing, uh, x will be cars underscore distance. So this is the basically I can say I am storing the data. I am storing data in variable. So I have a cards data, and that I am storing in particular variable which may be x, y, z, and so on. Okay. So how you can store the data? It is just like you're giving the name. It's just like you're giving the name. So we have x. So I'm storing the you can call, see, when you just type cars dollar sign, automatically the variable will shown you, right? So in this scenario you can select the x, so which is your x will be distance. Okay, because when you increase the speed, the distance may increase, or if you increase the do slow speed, your distance may be lesser. So therefore y will be the, again, cars underscore speed. mm, y on x. So wait, uh, y will be distance, because distance can be get affected. So but once you increase the speed, the distance will be more, right? So your, you can say, the speed is dependent on distance. Okay, that's why your distance will be your variable y, which is the dependent variable. Distance will be dependent variable, and speed will be independent. So you need to identify which is dependent, which is independent, first of all. Okay, so you can just check which variable is dependent on which variable. Okay, so I have stored y, which is distance. So how you can store? You can write your data set name, dollar sign, your variable name. Similarly for x also. Okay, so you can just run this. You run this also. So you have run this x and y. Now you can fit the model. So what will be model? LM. Do we need to install any packages for LM for performing linear model? Anyone? कोई पैकेज है अपने को इंस्टॉल करना है इसके लिए, LM के लिए? Mm, multicollinearity test is a different something. Okay, let's perform and see whether it will what exactly it's showing. So I have given the code y. This is the approximation sign x.
y approximation sign x. Just run and see what it's showing. See what you can find here. So in this scenario, what I have found here, if I run LM means linear model, LM means linear model, y is equal to x, right? We have the formula simple linear model, y is equal to x. So y tilde sine x. So this formula we have applied it and we have found that your intercept is this much and your beta 1 is this much. So, so what your beta 1 expressing here? What this beta 1 gives? What this beta 1 gives? Anyone can tell me? What this beta 1 gives information relating to this example? So beta 1 is the coefficient. This particular variable 3.93 is the coefficient. So what it gives? What actually the regression coefficient gives? Sir, it will give for a unit change in speed, it will give 3.93 2 as a distance. Okay, okay. Anybody else? अमित यादव क्या है प्लान टूट गई बेचारी की So that means uh, for every unit, for every unit increases in your independent variable. कौन में किधर है If one unit will be increases in your independent variable, then dependent variable is increased by 3.98, गेम ऑफ थ्रोन्स बनने में 11 साल लग गया right? So if you increase one unit, 2 साल Amit Yadav, mute yourself. So when you increase one unit in independent variable, then there will be increment in your independent variable by 3.932 units. So this is something like showing increment in dependent variable due to one unit change in independent. Are you getting my point? So here one can see that your beta is not equal to 0. Beta is not equal to 0. So you can go for individual testing. You can take a summary. So you can take a summary. So just write summary here. So what summary gives? Summary will give the ANOVA table here. Summary will give the ANOVA table. Now here I have to give the model. Yes. For example, I'm just writing model is equal to this one. Okay. तो मॉडल लिख के लिखने का है और फिर यहाँ पे लिखो. अभी देखो मैंने क्या किया. इफ आई राइट समरी ऑफ दिस और इसको मैं मॉडल लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या देगा. सी व्हाट इट गिव्स.
it has given the summary. It has given summary relating to my data. Means giving them more idea, more conceptual knowledge about my data. So again, they fit the same model formula. They are using y tilde x. This is called tilde sign. Okay, this is called tilde sign in terms of regression. Then we have a minimum value, first quartile, median, second quartile, third quartile, and maximum. Then here they did same concepts. We got the same regression, that is your beta naught. Beta naught is coming negative. That means I can say it is 0. Okay. So if there is no, if there is a, I can say, sorry, if the speed is 0, if my speed is 0, then they are saying distance is minus this, but which is not possible. This is approximated to 0. Okay. And this beta 1 is coming some value. So, and this is my standard error. So one can say this standard error is very large here because this there may be some problem in my beta naught. But this you can say beta 1 is a like normal. It's very less. Again, if we have a here t value, and here is the probability value, which is called probability p value. Here is a p value. So we need to interpret. We need to interpret whether this particular coefficient, so beta naught, and we know beta naught का हम लोग testing नहीं करते हैं, right? Beta naught is a constant value which is called intercept value, which is constant because that is not a variable, and beta 1 is our concern. Okay, so this is the speed. Beta 1 is your speed. So is that my speed is significant or not? I want to check whether my speed is some significant effect on my distance or not. So I need to check, I need to compare this value with my alpha value. Alpha is called as maximum of tie first error. Okay, alpha is called as, which is called level of significance. Okay, alpha is called as maximum of tie first error, which is your level of significance. So alpha we can consider 0 0.05, 0 0.01, 0 0.10. So that is based on the data. Now we need to check with this 3 star. This is 1 star. 1 star means they are checking with the 0.05. You can see, you can read, try to understand this data, because try to understand this output, because which is very important. So if I'm putting 1 star, that means I'm comparing with 0.05. If I'm what I can say putting 3 star, that means I'm comparing with zeros, right? I'm comparing with 0. So can you just tell me, can you just tell me if my this value is significant at 0, that means if I'm comparing this value with 0, is that will be significant at 0.001. क्योंकि ये वैल्यू 0.000000 लेस देन 0 है, मींस अप्रोक्सीमेट 0. So what concept you have studied? Can anyone tell me what concept you have studied in terms of p value? Anyone? क्या पढ़ा है? How you interpret these values? Any idea? If p value is less than alpha, Hmm. then we will reject h naught. Okay. So when I will say the p value, okay, it's not writing. Just okay. So when the p value less than alpha, we reject h naught. Reject h naught means there is a significant difference. There is a significant difference in regression coefficient. Okay. So is this value less than 0? Because actually they are testing with the help of 0. They are testing with the help of 0. So at 0,
So this is value 0.0000 is less than 0. I will say it is approximate 0. It is not actually 0. You can say it is greater than 0. So they are insignificant at this value. But what happened at 0.05? If I assume alpha is 0.5%, तो A situations में is this value significant or not? Because this value is 0.0000 means approximate 11 time and then 1.49 something. That means this value is greater than less than 0.05, right? That means we are going to reject the null hypothesis and we can model is significant. Model is significant. Okay, but if I'm assuming at the 0 at 0, so this value will be greater. This value will be greater. Greater means what? If I'm saying my p value is, let's say this example 0.001, suppose this greater than 0? Yes, that means we do not reject h naught. We do not reject h naught. So this is your p value, this is your alpha value. Sir, please repeat once again. See, now you can understand this is minus 12 means 0.00, some very big number, right? But suppose forget about that. Just imagine I have this value. इतना मेरा value आता है 0.0001. ये मेरा p का value है, p value है. Is this value less than 0 or greater than 0? Greater than 0 है. Yes, sir. That means it is greater than 0. That means we do not reject h naught. Do not reject h naught मतलब क्या? The model is insignificant. मतलब you are saying my beta is 0. हम लोग यही चेक करते हैं ना कि betas are 0 or not. Betas are 0 and not. So that's why I may not check on this. May not check on this. One can go with this, one can go with this. It is based on what is the level of significance we have given. Okay. So usually you can see this 1 star will be checked on this. एक स्टार दिया मतलब वो लोग ने जो बीटा नोट है वो 0.05 पे चेक किया है और जो बीटा 1 है बीटा 1 है वो लोग ने 3 स्टार पे चेक किया. ऐसा ही बोल रहा है. जस्ट Sir, यस बोलिए. sir, why we are doing this? मतलब if p value is greater than alpha, then why we are not rejecting it? Not सॉरी behind the scenes, sir. which one this one. हाँ मतलब सर अगर जो p वैल्यू है अगर वो अल्फा से बड़ा है हाँ. तो हम लोग उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं. सो सर इसके बिहाइंड द रीजन क्या है? No, what actually I'm trying to conclude here, this is for simple SLR model ना. तो SLR में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉडल को चेक कर लेते हैं और चेक करके हम लोग मॉडल लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा है करके. And then we stop there. We never go ahead. But in MLR, we need to go ahead. So why we are going ahead? So that's why I'm giving this all idea how we can interpret the things. तो अगर मेरा यहाँ पे p वैल्यू ग्रेटर हो गया अल्फा से, दैट मीन्स वी डू नॉट रिजेक्ट h नॉट, दैट मीन्स ऑल बीटाज आर 0. तो जब सब बीटा 0 ही हो गया तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं. आई विल स्टॉप द थिंग्स because I know that we have dependent variable but there is insignificant effect of all remaining variables. तो मुझे आगे टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है. So that's why I am just giving the more information कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि p वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन अल्फा, तो रिजेक्ट करते हैं और हम लोग आगे आगे जाते रहते. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. कभी कभी ये सिनेरियो नहीं होता. तो अपने को प्रॉपर्ली चेक करना है कि वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट. चेक करके ही अपने को प्रोसीड करना, नहीं तो अपने को स्टॉप करना मॉडल. तो अब केवल ये कंसेप्ट याद रखो. Whenever the p value is greater than less than alpha, we reject null hypothesis. That means there is significant model. Then only we will go ahead with the
इंडिविजुअल टेस्टिंग, अदरवाइज आगे जाने का नहीं है। ये कंसेप्ट याद रखो आप, बस और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू। अभी इसमें एक ये आ रहा है, दे आर सेइंग दिस स्टार फॉर दिस। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। देखो इसमें एक और कंसेप्चुअल थिंग्स मुझे मालूम पड़ा अभी, कि ये जो पर्टिकुलर स्टार वैल्यू है, दिख रहा है, ये सिंगल स्टार दिया, सिंगल स्टार ये वैल्यू ये 0.05 पे टेस्ट कर रहा है, और इस वैल्यू अगर ये वैल्यू कंपेयर करो तो क्या है, इट इज मोर, राइट। दिस वैल्यू p वैल्यू इज मोर देन 0.05 और लेस देन 0.05। लेस देन। लेस देन मीन्स यू हैव टू रिजेक्ट एच, राइट। यस सर। ये अभी कंडीशन हमने पढ़ा है, दैट मीन्स इट इज सिग्निफिकेंट एट 0.05। now what about this value, is this value, now they are testing on 3 star, तो 3 star किधर है, इधर है, मतलब एक्चुअली ये 3 स्टार इसके लिए है 0.001 पे, so is this value again lesser than 0.01? सर 3 स्टार इज फॉर 0 राइट? नो 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 नो, वही मेरे को कंफ्यूजन था। देखो अभी अभी ये जो स्टार ले रहे हैं हम लोग, ये किसके लिए ले रहे हैं, 0.05 के लिए ले रहे हैं ना, यस सर। तो वैसे ये 3 स्टार है 0.001 के लिए लेंगे। देखो दैट्स व्हाई आई हैव कंफ्यूज्ड हाँ कि यस सर, वो इसका यस, 0 लेने का सर मतलब ही नहीं मतलब ही बनता नहीं था और बनता, कंफ्यूजन हो रहा था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। करेक्ट लेकिन सर। उनका कैसा, उनका पैटर्न होता है ना कि उनको ऐसा ही लिखने का। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना, अंडरस्टैंडिंग द आउटपुट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटपुट तुमको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे, यस सर। दिस इज द रोल ऑफ स्टैटिस्टिशियन, दिस इज द रोल ऑफ स्टैटिस्टिशियन। ओके, सो ध्यान से देखो, अभी ये वैल्यू ना, ये 3 स्टार का मतलब हो गया हम लोग 0.001 पे टेस्ट कर रहे हैं, एंड वी फाउंड दैट दिस इज द सिग्निफिकेंट। और जिसपे देखो यहाँ पे क्या बोला है, सिग्निफिकेंस कोड, मतलब ये जो स्टार हमको देखना है, ये स्टार इसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड सर मतलब अगर वो 3 स्टार पे सिग्निफिकेंट है तो डेफिनेटली वो 0.05 पे सिग्निफिकेंट ही होगा। 100%, 100%। बट यस ऐसा नहीं है, अगर 0.05 पे सिग्निफिकेंट है तो ऐसा नहीं बोल सकते यस 0.001 पे यस सर, सिग्निफिकेंट, करेक्ट। मीन्स रिवर्स नहीं हो सकता। यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे, तो अभी देखो ऐसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने अभी बोला, so so these questions can be your MCQ type questions which is logically okay. So logic, there should be some logic behind the concepts. So if your model is significant at 5%, is that model will be significant at 1%? Answer will be, four options are given to you, so you need to select the correct answer. So this is the conceptual thing, we can always go with that. अभी देखो ये जो पर्टिकुलर p वैल्यू है 0.1.49, ये सिग्निफिकेंट है 0.001 पे, तो क्या वो 0.01 पे भी सिग्निफिकेंट रहेगा? यस। 0.005 पे सिग्निफिकेंट रहेगा? यस। 0.1 पे सिग्निफिकेंट रहेगा? यस। 1 पे रहेगा? यस। सो एट, तो लोअर वैल्यू के लिए सिग्निफिकेंट है तो हायर वैल्यू के लिए डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, बट हायर के लिए है तो लोअर के लिए नॉट नेसेसरी। तो ये कंसेप्ट आप कहीं पे लिख के लो, नोटबुक में आप लिख के लीजिए। Okay, let us go ahead. So this is the very important, we can always go with this model, और इसके बेसिस पे हमारा मॉडल बनता है। तो मॉडल में मुझे क्या मालूम पड़ा कि ये सिग्निफिकेंट मॉडल है, और मेरा जो मॉडल होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू -17.5791 plus I'll take 0.001 something speed, because I know the speed is significant. I know that my variable सर speed. 3.9324 आएगा वहाँ Sorry, पे। I just written the p value.
This is the T1. So this is plus 3.932 into speed. So this is my actually model. अभी आपने मॉडल बना लिया, अभी क्या करेंगे, मॉडल हमारा बन गया. Now one can estimate the value based on this model, right? One can estimate the value. तो अगर मेरे को स्पीड का कुछ वैल्यू दिया है तो आई कैन फाइंड डिस्टेंस का सम वैल्यू एंड सो ऑन. बट देखो, आपने मॉडल तो बना लिया, बट मॉडल बनाने से पहले हम लोग बहुत सारा अजम्पशंस यूज करते हैं, राइट? तो हैव यू चेक द अजम्पशन, हैव यू चेक द अजम्पशन, अजम्पशन चेक नहीं किया, राइट? तो तो वी नीड टू चेक द अजम्पशन फॉर सेम, राइट? तो उसके लिए, अच्छा इसके पहले मैं और कुछ यहाँ पे है क्या, लेट मी सी. यस सर, है थोड़े बहुत और है. तो थोड़े तो वो भी हम लोग फिनिश कर लेते हैं पहले, देन वी कैन. आई होप यू कैन अंडरस्टूड टिल हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल टिल हियर, ओके? यस सर, एब्सोल्युटली. सो अभी यहाँ पे एक और कंसेप्ट दिया है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आर स्क्वायर वैल्यू. सी दिस आर स्क्वायर वैल्यू. R square value is coming 0.65 and adjust R square coming is 0.6. I think this model is not, I can say, well fit model. Well fit means अगर R square का value 1% है, तो you can say, you can understand only 1% of, you can say, distance, 1% of the distance explained by the speed variable. मतलब केवल 1% इंफॉर्मेशन, 1% प्रपोर्शन दिखा रहा है आपका स्पीड, 1% इंफॉर्मेशन दे रहा है डिस्टेंस के बारे में ड्यू टू द स्पीड. तो आई थिंक दैट इज द मॉडल इज इनसिग्निफिकेंट, मॉडल इज इनसिग्निफिकेंट. तो इधर ही हम लोग फेल हो जा रहे हैं, इधर ही हम लोग फेल हो जा रहे हैं. मतलब यू सॉरी कैन सर, प्लीज रिपीट. see here your multiple r square value is your r square value. So this particular r square value, so we have studied in the last class what this r square value gives. It it gives the proportion of information. Proportions in my dependent variable is contributed by independent variable. How much variability, how much percentage of variability explained in the dependent variable due to independent variable. तो यहाँ पे तो 1% ही मेरे को वेरिएबिलिटी दिखा रहा है अबाउट माई डिस्टेंस ड्यू टू माई स्पीड. यू कैन सी दिस इज 0.65, मतलब क्या 1% हो गया ना? नो सर, 65%. 65%, no sir. Oh, right. 60.11%. Right. I thought it is 0.006. Yes Correct. sir. This is 65%. Absolutely right. 65% of my distance variable, the proportion. So 65% of 65% of my distance is explained by speed. Right? How you interpret that? How you can interpret this thing? Is this way? How you interpret? 65%, 65.11% Of the of, variability of distance is explained by speed. yeah, you can say like this. So 65.11% of variability in distance is explained by speed variable, right? Or 65% of 65.11%
of is that variability same as variance? Variability same as the variance. Is that variance only? So just understand this is some like it's a data which shows some information relating to the my model, whether the model is significant or not, whether model is good fit or not. So to checking that whether model is good fit or not, we can always check the R square value. We can check always the R square value, or in this scenario 65% of your variability in the distance is contributed by the speed variable. इतना आप समझ के लीजिए is explained by the speed variable, or is contributed by the uh, you can call speed variable. Okay, and then we have adjusted R square. The interpretation is same for R square and adjusted R square, but here in adjusted R square, make sure that we have considered only the degree of freedom. So there is slightly change. There is a slightly change in your adjusted R square value. Now in the last class we have told you that when you add one more variable in your data, your R square value R square value definitely going to increase, but adjusted R square value may increase or may not be increased. Okay, that concept you can always take care here. Now this is related adjust R square value. What about F calculated? So this is given by using the formula. ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से वो वैल्यू देता है, एंड वी गॉट द पी वैल्यू. तो पी वैल्यू यहाँ पे फिर वही दिखा रहा है, आपका इंटरप्रिटेशन दिखा रहा है कि ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है कि नहीं. आई थिंक इसका इंटरप्रिटेशन दोनों का सेम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बट हियर 65% of information is in independent variable is given by dependent variable, that we are knowing. But have we checked for the plots whether this particular plot you can not a plot whether it's satisfying the properties of you can say assumptions of, Assumptions. yeah, properties or assumptions of normal distributions or not. So we need to check for the assumptions of your linear model. So for this we need to write plot model. So when you plot model, see at the bottom right side bottom you will get this plot. Are you able to see this plot properly? Yes, sir. Yes, sir. Should I zoom it? Let me zoom it. See, this is my plot. Now this plot is called as residual versus fitted plot. Residual versus fitted plot. रेसिडुअल बोलेगा तो क्या आपका एरर, और फिटेड वैल्यू मतलब y hat. Okay, so on x axis we have y hat and on y axis we have a residual error term, and this plot gives the information about whether in your data is there is any outlier exist or not. Okay, so I'll just sharing that this is residual versus fitted, so I'm just giving some idea about Outlier. yeah. So you can look at that screen so that you can get more information regarding that. I pasted that plot here. See, residual versus fitted. Now let me just scroll it. Yeah, so we have a residual versus fitted plot. What this information gives this particular plot, maybe you have seen in the SLR. Okay, so this particular plot
gives the information about, say, I have given some description about that plot to check whether this plot test the assumption, this plot check the assumption, just highlighting this thing so we can able to read it properly. It's highlighted. This is important. This plot tests the assumptions of whether relationship between your variables is linear and whether there is equal variance along with linear line, that is homoscedasticity. ये हम लोग थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे इन नेक्स्ट यूनिट, बट इतना समझ के लो कि रेसिडुअल वर्सेस फिटेड प्लॉट क्या करता है, क्या रोल है उसका। मतलब ये प्लॉट जो हमको दिखाता है वो केवल ये चेक करता है, जो हम लोग लीनियर लीनियर चिल्लाते हैं, लीनियर लीनियर राइट, लीनियर मॉडल लीनियर मॉडल लीनियर, ये एक्चुअली लीनियर मॉडल है कि नहीं वो बताता है। और दूसरा, इसके अंदर इक्वल वेरिएंस है कि नहीं, क्योंकि मॉडल फिट होने के लिए आपने पढ़ा है कि वेरिएंस हैज टू बी सेम ना, योर वेरिएंस हैज टू बी सेम, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Yes. E is equal to sigma square, that error term, because you know you are saying that your error is follows normal with 0 comma sigma square, मतलब मीन 0 होना चाहिए और तुम्हारा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए। सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या, there should be homoscedasticity. Homoscedasticity means we have a equal variance. So what happens if there is no equal variance? So we cannot apply linear model. We cannot apply linear. Means there has to be some other method. There has to be, it is quadratic form. There has to be some linear, you can say cubic form. So it is not necessary that it is linear. So you have to go with another plot and you can see that. तो अगर मैं प्लॉट की बात करूंगा तो प्लॉट मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है और देखो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, अ गुड रेसिडुअल वर्सेस फिटेड प्लॉट should be relatively shapeless. It is shapeless means without clear pattern. अभी ये कोई पैटर्न नहीं दे रहा है, देखो दिख रहा है पैटर्न, मतलब क्या, मेरा डेटा ऐसा ऐसा जाएगा, दिस इज कॉल्ड पैटर्न, मतलब अप डाउन होगा अप डाउन होगा अप डाउन होगा, ठीक है। तो एक पैटर्न मिलता है अपने को इसमें, बट इसमें एक पैटर्न नहीं मिल रहा, इट इज ऑन स्ट्रेट, इट इज इन समथिंग लाइक रैंडम, ओके। सो व्हेनेवर देयर इज अ रैंडम and though no obvious outlier but generally symmetric distributed around the zero, मतलब mean, without particular large residual। अभी देखो यहाँ पे large residual तो बोल सकते हैं हम लोग, बट अभी वो ऐसा बोल रहा नहीं है, ठीक है, we can understand, but approximated to mean, जीरो दिख रहा है इधर, जीरो देखो रेसिडुअल यहाँ पे जीरो दिख रहा है आपको, जीरो दिख रहा है यहाँ पे। Yes, sir. तो ये सिचुएशन में ये जो पॉइंट जीरो है, मतलब वी सेइंग ना रेसिडुअल दैट इज योर एरर फॉलोज नॉर्मल विद मीन जीरो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो मीन है तो अप्रोक्सीमेट सा वैल्यू आप मीन के आसपास में ही है, मतलब मीन जीरो हो गया आपका। और देयर मे बी वेरिएबिलिटी इन द डेटा, बिकॉज इधर इधर एक्चुअली ये ये प्लॉट में इट इज शेपलेस because there is a no pattern found. I may give another example where you can able to see the pattern. ओके अपने नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। तो इसमें कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, इट इज रैंडम, इट्स लुक लाइक अ रैंडम प्लॉट, इट्स लुक लाइक अ रैंडम प्लॉट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आवर प्लॉट इज ओके, आवर प्लॉट इज ओके विथ रिलेटिवली शेपलेस, मींस इट हैज नो शेप। तो यहाँ पे दो तीन टाइप का शेप होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड राइट, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में है। एंड द रेसिडुअल गेट लार्जर, देखो अभी देखो ध्यान से देखो, अगर प्लॉट अगर आप थोड़ा जूम करके देखोगे आपका स्क्रीन, तो रेसिडुअल गेट लार्जर, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, दिख रहा है, वैसे वैसे रेसिडुअल जो है ना आपका बढ़ता जा रहा है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, आपका ये है शेप है वो ऐसा बढ़ता जा रहा है, लेट मी सिलेक्ट लाइक दिस। पहले इनिशियली आपका ऐसा है, इनिशियली शुरू में ऐसा है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
देखो वेरिएबिलिटी बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, वेरिएबिलिटी बढ़ता जा रहा है एंड सो ऑन। सिमिलरली दिस केस ऑल्सो, शुरू में थोड़ा कम है लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वेरिएबिलिटी बढ़ता जा रहा है एंड सो ऑन। सो यहाँ पे डिस्टेंस देखो ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स द रेसिडुअल गेट लार्जर एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आपका वेरिएबिलिटी बढ़ता जा रहा है एंड देयर आर फ्यू पोटेंशियल आउटलायर, मतलब ये सब दिख रहा है, ये सब आपका पोटेंशियल आउटलायर है जिसमें 49 इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड there may be the few issues with our model. However, probably it is not useful to try to over interpret this plot. Means this model is actually somewhere it is, since it is 65% of proportion it is showing, but फिर भी ये मॉडल इतना यूजफुल नहीं है कि हम लोग उसको प्रॉपर ओवर इंटरप्रेट कर ले, over interpret the model. So what we have to understand, we can try to remove this outlier, remove these three outlier one by one, and we can check is there is significant in R square value or not. सर Yes, बोलिए। सर रेसिडुअल का मतलब तो समझता है सर, वो फिटेड वैल्यू क्या है, मतलब फिटेड रेसिडुअल y hat, y hat, y hat, फिटेड वैल्यू मतलब y hat हो गया ना आपका, दिस इज e and this is y hat। ओके सर। तो इसमें आपको प्लॉट के बारे में समझना है, केवल प्लॉट में क्या समझना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो समझना है। तो पहले से यहाँ पे जब कभी हम लोग फिटेड मॉडल की बात करेंगे रेसिडुअल वर्सेस फिटल में, तो उसमें दो चीज़ बताना है। पहला चीज़ कि आपका जो प्लॉट है वो शेपलेस है, मतलब इसका कोई शेप नहीं बना। शेप मतलब कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, इट कैन बी लाइक दिस, राइट, शेप ऐसा होता है। और दूसरा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका वेरिएबिलिटी बढ़ता जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। कहीं कहीं पे क्या होता है, प्लॉट ना नॉर्मल के आसपास, जीरो के आसपास में ही होगा, मतलब वेरिएबिलिटी बहुत कम होगा इसमें। तो इस सिचुएशन में ना आपका आउटलायर होने का चांसेस कम है। और दो पॉइंट मेंशन किया, दूसरा इसमें कुछ प्लॉट्स में आउटलायर होंगे, वो प्लॉट्स वो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना। ये तीन चीज आपको इसमें बताना है, जो दैट इज बेसिकली रेसिडुअल वर्सेस फिटेड। इज दैट ओके? I think that will be sufficient for this one. Yes. यस Any question? Any question? So I hope you are noting this. Even I am going to send this you can say this PDF particular word file. But better you can note down कि residual versus fitted में क्या, देखो क्या होता है मालूम है, this things will be not there in your like basically in theory, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बट वो प्लॉट्स हमको आर में कैसे यूटिलाइज करना है, दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस कॉन्सेप्ट। अदरवाइज आई कैन गो अहेड विद जस्ट ये चार प्लॉट है, इसमें आउटर देखा काम खत्म, राइट, तो उतना ज़्यादा कुछ रोल नहीं है उसका। बट जस्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज क्या होता है मालूम है, ये सब कंसेप्ट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर मास्टर्स लेवल डीपली। उधर भी तुमको ऐसे ही बताएंगे ऐसा प्लॉट है, ऐसा करते हैं, ऐसा प्लॉट करते हैं, काम खत्म। बट इसको इंटरप्रेट करने के लिए तीन कंसेप्ट आपको समझना है। एक तो शेपलेस, कंसेप्ट ऑफ शेपलेस आपको इंट्रोड्यूस करना है। दूसरा, जैसे यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेदर योर व्हाट यू कॉल्ड डिस्टेंस, लेफ्ट टू राइट में डिस्टेंस सेम है। सेम मतलब मैं यहाँ पे मेंशन किया ना, सेम का मतलब कि मुझे यहाँ पे वेरिएंस की बात बताता है, वेरिएंस के बारे में बोलता है। तो वेरिएंस इक्वल कब होगा, जब ये लाइन जीरो पे और यहाँ पे जो पॉइंट है ना उसका लाइन सेम होगा। लेकिन यहाँ पे देखा लाइन बढ़ रहा है आपका, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आपका यू कैन कॉल्ड टू लाइन्स आर स्प्रेडिंग, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब डेटा इज heteroscedasticity, data is not means they don't have equal variance। हम लोग यही गड़बड़ करते हैं और हम लोग पूरा मॉडल खत्म कर देते हैं, which is actually wrong। You cannot feed the with, because your assumptions is not satisfying your property of your linear model which is fails here, okay। बट पूरा मॉडल लिख के हम लोग लिखते हैं, अभी हम हमारे इस सिलेबस में है तो हम लोग ऐसा लिखेंगे
क्योंकि we try to remove this outlier and फिर हम लोग थोड़ा उसको maybe we'll do certain transformation log और सब लेके हम लोग करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट लेट्स सी द अनदर प्लॉट. दूसरा प्लॉट मेरा क्या है अभी, एक प्लॉट के. हाँ बोलिए बेटा. सर अगर आउटलायर ज्यादा हुए हाँ. तो सर अगर सबको हम लोग ने रिमूव कर दिया तो सर इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज वो आउटलायर का भी तो कुछ मीनिंग होगा. तो हम सबको रिमूव कर देंगे तो सर कैसे चलेगा? नहीं नहीं, सबको रिमूव नहीं करना. यू हैव टू रिमूव वन बाय वन. See, we are not going to remove all outlier. We have to remove that outlier which is most affecting in your data. मतलब अगर कोई कोई आउटलायर ऐसा होता है ना कि उसको उसकी जरूरत ही नहीं है लेकिन उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ अपने 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 पूरे लेट्स से इन आवर टर्म्स ऑफ रिजल्ट, अपने डिपार्टमेंट में 99.9999% बच्चे पास हुए लेकिन एक बच्चा फेल हो गया, और वो भी बच्चा फेल नहीं होता था बिकॉज ड्यू टू सम रीजन, मे बी हैविंग सम डिसीज और हैविंग सम प्रॉब्लम विद देम. तो उसकी तो दैट इज एक्चुअली आउटलायर. Are you getting my point? So if I remove that person due to the, I can say maybe some special case, तो मेरा मॉडल क्या होगा, 100% गुड फिट होगा. आप समझ रहे हैं? सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कि अभी मे बी सर जो 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं वो भी बच्चे कम है, और तो सर उसको भी आउटलायर मान के निकालना चाहिए. नहीं, एक्चुअली वो क्या होता है मालूम है, वो तो हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू यूज लीनियर मॉडल. वी हैव टू यूज द सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज करना पड़ेगा बिकॉज देयर वी हैव टू मेक अ कैटेगरी कि 90 अबाव कितने बच्चे पाते हैं, 80 अबाव कितने, तो स्टेटा बनाना पड़ेगा वहां पे आपको, और स्टेटा बना के उसके बाद उसमें लीनियर अप्लाई करना पड़ेगा, which is nothing but your some maybe it is not linear, it is something called other logistic linear or maybe there are different type of linear also. तो वो सर आपने रेसिडुअल वर्सेस फिटेड में बोला 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है. पहला शेपलेस, दूसरा करेक्ट. मोस्केडास्किटिसी, और तीसरा कौन सा पॉइंट बोले सर? तीसरा ये आउटलायर जो प्रेजेंस है, मतलब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग कि फ्यू पोटेंशियल आउटलायर होता है उसके अंदर, एंड देयर मे बी सम इश्यू विद दिस मॉडल. अभी इसके बारे में हम लोग और डील करेंगे जब हम लोग दूसरा प्लॉट बनाएंगे ना, तो अपने को और थोड़ा क्लियर आएगा. लेकिन केवल आप दिमाग में इतना बैठा के लो कि रेसिडुअल वर्सेस फिटेड में क्या मुझे अगर कुछ बोलना है, अगर कुछ इंटरप्रेट करना है तो मैं क्या बोलूंगा. तो पहले शेपलेस के बारे में डिस्कस करूंगा. दूसरा, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मेरा जो शेप है वो नॉर्मल है कि बढ़ रहा है, उसके बारे में बोलना है. मतलब लार्जर हो रहा है कि लार्जर, और क्या बोलते हैं उसको, वाइडर हो रहा है कि लार्जर हो रहा है, इतना. आई थिंक वाइडर, करेक्ट. सिमेट्री हो गया. सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक नहीं बोलने का, सिमेट्रिक इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल, नॉट. ओके, विल डिस्कस इन नेक्स्ट प्लॉट. यस सर. लेट्स सी. मैंने तो प्लॉट में हमारा दोनों लेक्चर जाने वाला है, लग रहा है मेरे को. Okay, so next plot is, if I just plot next plot is basically I'll just zoom it this. सर स्क्रीन नहीं, Yeah, I'm sharing. My next plot, I think you are familiar with this plot, right? You are familiar with, हाँ, ये कौन सा प्लॉट है बेटा, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कौन सा प्लॉट है? कौन सा प्लॉट है? नॉर्मलिटी चेक करने के लिए. हाँ, नॉर्मलिटी चेक करने के. तो इसको कौन सा प्लॉट बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल प्लॉट बोलते हैं ना. क्यूक्यू प्लॉट मतलब कोटाइल प्लॉट, राइट? क्यूक्यू प्लॉट बोलते हैं, लेकिन क्यू प्लॉट को बोलते हैं क्या हम लोग? इट्स अ कोटाइल प्लॉट. तो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द कोटाइल्स. और ये प्लॉट क्या देता है बेसिकली? इट प्लॉट, दिस पर्टिकुलर प्लॉट determines whether our dependent variable is normally distributed by plotting the quantiles from our distribution versus theoretical distribution. बोलो अभी क्या इसका मतलब समझे आप? और if our data is normally distributed, it will be plotted a straight line. So it's look very pretty good and indicates normal distribution, and it's generally straight line.
तो मतलब मुझे इतना समझ में आ रहा है इधर कि almost all points are on the line, but there are 3 points again outside the line. और कुछ मतलब डेटा मेरा नॉर्मल है, बट मेरे पॉइंट डेटा में कुछ आउटलायर्स हैं. सर ये वाला समझ रहा है थोड़ा. हाँ, सर नहीं समझ रहा है. क्या नहीं, क्या समझना मुझे वो बताओ. इसका सर इंटरप्रिटेशन क्या. इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि यहाँ पे जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, आप बोलते हैं ना y, यस सर. क्योंकि अगर आप बोलते हैं नॉर्मल, योर ई आई फॉलोज नॉर्मल विथ 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या फॉलो करना चाहिए उसके हिसाब से सोचो. वो भी एक अजम्पशन है आपका. तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ normally distributed by plotting quantiles, that is your percentiles, from our distribution against theoretical distribution. अभी theoretical distributions क्या होता है मुझे बता सकते हो. एस्टिमेटेड वैल्यू. हाँ, theoretical distributions मतलब एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशंस. मतलब मुझे जो आप इसमें काय स्क्वायर में चेक करते हो ना आप, कि अगर मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस है तो ये रियली इट इज कमिंग फ्रॉम पॉइजन और नॉट. अगर मैं पॉइजन का एक वैल्यू देता हूँ और बोलता हूँ कि चेक करो कि हाँ ये पॉइजन से ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर मैं पॉइजन को कंसिडर करूँगा, जो मेरा एक्चुअल डेटा है दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू. So if I'm testing lambda is equal to 2 versus lambda is not equal to 2, so lambda is equal to 2 is my theoretical value. और उसके बेसिस में जो मैं सैंपल कंसिडर करूंगा वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है. देखिए ये जो प्लॉट किया उस सैंपल के बेसिस पे ही किया है ना. दे हैव कंसिडर सैंपल और वो सैंपल के बेसिस पे प्लॉट कंसिडर किया और वो चेक कर रहा है कि इज दैट is equivalent to my theoretical distributions or not. So if our data is a normally distributed, it will be shown the straight line. तो straight line तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, but there are still some outlier. तो इधर अपने को केवल क्या बताना है कि our dependent variable is a normally distributed from our distributions versus theoretical distribution. ये मेरा क्यूकी प्लॉट देता है. मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है वो बताता है मेरा डेटा यूजिंग नॉर्मल. तो अभी ये तो बता रहा है स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे स्टिल देयर आर फ्यू आउटलायर एग्जिस्ट. देयर आर स्टिल फ्यू आउटलायर्स एग्जिस्ट. और क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन पढ़ो इसका. लुक्स प्रिटी गुड बट इंडिकेट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड आल्सो इट जनरली स्ट्रेट लाइन. मतलब ये इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फॉलो कर रहा है और ये जनरली स्ट्रेट लाइन है. बोलो क्या समझे. Yes, anyone who can interpret, you can say more clearly. अरे ये सब पढ़ा है तुमने एसएलआर में, क्या किया है बोलो मुझे फटाफट. एसएलआर में किया है ना सब, प्लॉट्स के बारे में किया है ना अच्छे से डीपली. No, model is not good fit. You cannot say using normal plot how you can say model is good fit. Model is not, see, based on normal how you can say model is good fit. Model is good fit only when you, it depends on the R square value. Remember, always remember, R square value ही बताता है मॉडल गुड फिट है कि नहीं है. ये मेरा सर्टन अजम्पशंस है. नॉर्मल प्लॉट मेरा सर्टन अजम्पशंस है कि
डेटा नॉर्मल है कि नहीं है, डेटा नॉर्मल है तो ही मैं आगे कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। मतलब इधर मुझे मालूम पड़ा डेटा मेरा नॉर्मल है, मतलब एक assumption तो दे रहा है, बट डेटा में फिर भी आउटलायर है। ये प्लॉट मुझे ये देता है, दिस प्लॉट शोइंग मी माय डेटा इज प्रीटी नॉर्मल, it look nice, you can say like this, it's pretty good, जैसा यहाँ लिखा है, it's pretty good and indicates normal distribution, but there is some point or there is some outlier exists. Okay, so अभी आउटलायर एग्जिस्ट है, आउटलायर है तो हाँ रहने दीजिए, बट डेटा नॉर्मल है ना, तो हम लोग यहाँ पे अपना ये अप्लाई कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज कॉल्ड, लीनियर मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला है, लीनियर मॉडल के एक अजम्पशन नहीं है, लीनियर मॉडल के बहुत सारे assumption। तो जब सब सेटिस्फाई होगा तो ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा प्लॉट कौन सा है मेरा। दूसरा व्हेन आई प्लॉट स्केल लोकेशन। या अच्छा, स्केल लोकेशन के पहले ये देख लेते हैं हम लोग, रेसिडुअल वर्सेस लेवरेज प्लॉट। आपको टोटल 4 प्लॉट मिलेंगे, राइट। तो रेसिडुअल वर्सेस लेवरेज प्लॉट क्या होता है, देखो दिख रहा है, कैन यू एबल टू सी द स्क्रीन प्रॉपर्ली? Yes. ये नहीं, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा आप जूम कर लो आप। ओके, जूम मतलब यू टू जस्ट स्क्रॉल इट लाइक योर विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लॉट में क्या होगा, ये प्लॉट में ध्यान से आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल, मतलब जो रेसिडुअल है वो मेरा स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे लीवरेज पॉइंट होता है, लीवरेज पॉइंट, और ये मॉडल मैंने फिट किया हुआ है। तो जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल वर्सेस लीवरेज पॉइंट। लीवरेज पॉइंट क्या होता है पहले आप वो समझो। एक्चुअली इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट जिसके वजह से आपका मॉडल थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, इन्फ्लुएंस पॉइंट बोलो या लीवरेज पॉइंट बोलो। तो क्या करता है अभी ये मॉडल, करता क्या है, अपने को क्या समझना है कि ये पर्टिकुलर प्लॉट करता क्या है, इसका रोल क्या है और कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, दिस इज अवर एम। तो ये सेशन का हमारा यही एम है कि हम कैसे उसको प्लॉट को इंटरप्रेट करना है। रेसिडुअल वर्सेस लेवरेज प्लॉट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस पॉइंट ऑन योर मॉडल। अब इन्फ्लुएंस पॉइंट क्या होता है, जो पॉइंट अपने को तकलीफ दे, जो पॉइंट अपने को, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, विच इज प्रोमिनेंट, विच इज सिग्निफिकेंट। देखो इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, पावरफुल पॉइंट, इट्स वेरी पावरफुल पॉइंट। एंड आउटलायर कैन बी, देखो मैंने बोला ना आउटलायर कैन बी इन्फ्लुएंस पॉइंट। तो पावरफुल मतलब पावरफुल तो है डेफिनेटली, बट पावरफुल टर्म्स ऑफ आउटलायर, पावरफुल मतलब, इन्फ्लुएंस मतलब पावरफुल है बट पावरफुल दैट कैन बी द यू कैन से प्रॉब्लम फॉर मी। ओके, अगर मैं बोलूँगा आपको सिंपल टर्म में, अगर कोई 20 साल 25 साल का एकदम पतला सुगड़ा लड़का है और किसी एकदम हट्टे कट्टे आदमी के सामने खड़ा हो गया है जो बॉडी बिल्डर है, तो क्या करोगे आप, थिंक ऑन दिस। तो वो भाग जाएगा वहां से। सो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज पावरफुल बट इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी। ओके, तो ये प्लॉट यही करता है कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इन्फ्लुएंस पॉइंट है, इन्फ्लुएंस डेटा सेट है, वो आइडेंटिफाई कर। दैट इज ओनली रोल ऑफ द residual versus leverage plot. And though this the not necessary have it some point within the normal range in the model and could be very influence. Okay, so let us understand the consideration of such an example. So in this point we are looking, we are value in the upper corner and lower corner. अभी ये वैल्यू हमको कहाँ मिलता है, ये पॉइंट हमको कहाँ मिलता है, ये पॉइंट हमको यहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, अपर राइट, अपर राइट मतलब एकदम टॉप, यू कैन से टॉप अप, राइट टॉप एंड लोअर राइट एंड आउटसाइड द रेड, इट इज important.
outside the red dash. ये अच्छे से याद रखो. And these are the points could be influenced in the model. Removing them noticeable alter your result. If I remove that particular point, that means your model can be altered. Your regression can be. अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अगर इसको आप बरोबर देख के लोगे तो मुझे लगता है आपको सब क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस पॉइंट है कि नहीं. देखो इन्फ्लुएंस पॉइंट है क्या यहाँ पे. तो सबसे पहले हमको डैश लाइन देखना है. डैश लाइन किधर है, इधर है. एक भी पॉइंट देखो, दो डैश लाइन होता है, एक या फिर एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, कहाँ यहाँ पे हो सकता है, सॉरी, वन पॉइंट कैन बी हियर ऑल्सो. एक डैश लाइन यहाँ पे होगा, एक डैश लाइन यहाँ पे होगा. यही दो डैश लाइन में आपको चेक करना है कि कोई पॉइंट तो यहाँ पे नहीं है. अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो वो पॉइंट अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करे और उसको ही हम लोग आउटलायर मानेंगे, याद रखो. तो इसी प्लॉट से हम लोग को आउटलायर ढूंढना है और कोई भी प्लॉट हम लोग जाएंगे नहीं. या फिर हम लोग जा सकते हैं दूसरा वाला, पहला वाला क्या बताया, फिटेड वर्सेस रेसिडुअल वर्सेस फिटेड बताया ना, उससे भी जा सकते हैं. लेकिन जनरली हम लोग ये प्लॉट से जाएंगे बिकॉज ये प्लॉट हमको एकदम बोलते हैं ना पावरफुल पॉइंट्स देता है जो मेरे मॉडल को इफेक्ट कर सकता है, मेरा पूरा रिजल्ट चेंज कर सकता है. Getting my point. So that's why we are going with this plot, basically residual versus leverage point. Is that clear? Then let me. Yes, बोलिए. Anyone? सर हाँ बोलिए बेटा. सर all leverage points are not outliers, right? All leverage points maybe. बिकॉज सर अगर कोई पॉइंट है जो हमारे मतलब सारे जो ऑब्जर्वेशंस है उससे बाहर है बट वो हमारे प्रिडिक्शन वैल्यू को मीट कर रहा है, सो इट इज अ लेवरेज पॉइंट बट इट इज नॉट एन आउटलायर, राइट? You can say. देखो इसलिए यहाँ पे बोला ना, दो दे नॉट नेसेसरी हैव इट. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आउटलायर ही हो. योर आउटलायर, तो इसीलिए तो वहां पे क्लियरली मेंशन कर दिया ना कि उसने कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो पॉइंट आउटलायर भी हो. लेकिन यही आपको समझना है कि जब कभी भी आपका पॉइंट ये रेड लाइन के अंदर होगा. अभी देखो यहाँ पे 49 यहाँ पर है, दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली आउटलायर नहीं है. ये एक्चुअली आउटलायर है ही नहीं. मैं आपको बोला, लेकिन अभी तक हमारा क्या इंटरप्रिटेशन था, 2-3 प्लॉट हमने देखा, उसमें क्या इंटरप्रिटेशन था मेरा, 49, 23, दे आर ऑल बेसिकली आउटलायर. बट मुझे क्लियरली श्योर हो गया इट इज अ आउटलायर बट इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग, इट इज नॉट affecting my data, it is not affecting my model. अगर ये 49 मेरा यहाँ पे होता, जो डॉटेड लाइन के आसपास, इवन नियर टू दिस पॉइंट होता, टचिंग में भी होता या इसके बाहर होता, जनरली हम लोग बाहर लेते हैं, बट कभी कभी क्या होता है लाइन के ऊपर आ जाता है या फिर लाइन के पास में आ जाता है, तो भी वो मॉडल में इफेक्ट करेगा. अगर उसको आप रिमूव करके देखो, डेफिनेटली योर मॉडल और यू कैन से आर स्क्वायर वैल्यू विल इंक्रीज. तो सर अगर रेड लाइन के यहाँ पर आया तो उसको सीधा आउटलायर कंसीडर करने का और रिमूव कर देने का. यस मैं इसीलिए मैं क्यों स्लोली जा रहा हूँ कि मुझे ये कंसेप्ट बताना है, क्योंकि पूरा कंसेप्ट आपका इसके ऊपर ही डिपेंड है और बाकी सब आपका सिंटेक्स है. सिंटेक्स रन करो, आपको आउटपुट मिल जाएगा. यस सर. लेट्स मूव अहेड. लास्ट प्लॉट इज Sir. रिमेनिंग आई थिंक. यस Hello, बोलिए sir. बेटा. हाँ बोलिए बेटा. सर कुक्स डिस्टेंस क्या है? कुक डिस्टेंस इज अ टेक्निक. मतलब कुक डिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग ने पॉइंट्स प्लॉट करते हैं. ये जो पॉइंट्स होता है ना, पॉइंट्स, हाँ हम लोग थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस करूंगा नेक्स्ट यूनिट में. तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले को यूज करके हम लोग जो पॉइंट्स मिलता है ना, उसमें हम लोग स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल और लिवरेज पॉइंट, कुक डिस्टेंस, इसको कुक डिस्टेंस प्लॉट बोलते हैं हम लोग. कुक डिस्टेंस प्लॉट में क्या होता है मालूम है कि जैसे हमारे डेटा सेट में हम लोग स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल निकालते हैं, लीवरेज पॉइंट्स अपने को दिया रहता है.
उसके बेसिस पे प्लॉट बनाते हैं। और प्लॉट में ये जो लाइन ये लोग बनाते हैं वो बहुत डीपली कंसेप्ट है, ठीक है। तो अपने को डीपली कंसेप्ट जाना नहीं, केवल अपने को समझना है कि कुक डिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट और आई कैन से फिटेड वैल्यू वाई हैट और ई हैट, ये सब क्या होता है, वैसे कुक डिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला होता है। कुक डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। सर कुक्स डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है। हाँ मतलब आपके ग्राफ में देखो यहाँ पे सेंटर में रेड डॉटेड लाइन बना हाँ है, वही हाँ, कहीं भी हो सकता है ना। कहीं कहीं पर भी नहीं। जनरली जनरली क्या होता है कुक डिस्टेंस मतलब क्या होता है, कुक डिस्टेंस, अब डिस्टेंस मतलब क्या, जो पॉइंट्स बहुत सब क्लस्टरिंग में हो। देखो मेजॉरिटी पॉइंट्स आपका यहीं पे आ रहा है ना, मेजॉरिटी पॉइंट, और ये सब बाकी पॉइंट स्प्लिट हुआ है। मतलब कुक डिस्टेंस में क्या होता है, जब सब बहुत सारे पॉइंट्स एक जगह आते हैं ना, तो वहीं पे कुक डिस्टेंस आएगा। बाकी सर हाँ बोलिए। सर वो एक्स एक्सिस पे जरा शो कीजिए ना। हाँ सर वो लिवरेज मतलब कैसे क्या? कौन सा लेवरेज, ये वाला? हाँ 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 हाँ। मतलब समझा नहीं, लेवरेज मतलब मतलब अभी देखो सर, ये लिवरेज है ना, तो ये 0.2 0.04 ये क्या शो कर रहा है? वो लोग शायद प्रपोर्शंस में कुछ कन्वर्ट किए रहेंगे शायद। हाँ हाँ हाँ। Maybe they have to convert in terms of proportions, because ये सब तो प्लॉट हमको डेटा दे, आउटपुट इससे मिलेगा ना। बिकॉज क्या होता है मालूम है, ये सब मैन्युअली करना बहुत डिफिकल्ट होता करेक्ट सर। है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर ने क्या है, अभी देखो ये सब लाइन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। दिस इज नॉट डन मैन्युअली, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ओके। बिकॉज बिकॉज आपके सिलेबस में भी कंसेप्ट बहुत एकदम बोलते हैं ना, केवल 0.0000 दैट मच परसेंट का कंसेप्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सो आई कैन नॉट like going deeply, there is no use, okay. Now what is next, last plot? I think last plot is basically your where am I? Last plot is scale location plot. Last plot is scale location plot. अभी scale location plot क्या देता है मेरा, कि क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा मैं जूम करना चाहता हूँ इसको, तो जूम करके फिर आप पढ़ सकते हो। ओके, तो स्केल लोकेशन प्लॉट क्या देता है मुझे, जस्ट अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या रोल है इसका। वेदर आवर रेसिडुअल मतलब एरर इज स्प्रेड इक्वली along with filter range or not। मतलब स्केल और स्केल लोकेशन का भी कंसेप्ट सेम है। ये आपका होमोस्केडास्टिसिटी बताता है। मतलब वी वांट टू check the whether the line on this plot to be horizontal with the randomly spread point on the plot or not। देखो क्या मालूम पड़ रहा है प्लॉट से, ये जो लाइन मैंने बनाया, ये लाइन से ये जो प्लॉट मेरा है, ये स्ट्रेट गया है कि स्प्रेड होके जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है मेरा, रेसिडुअल है और फिटेड वैल्यू, रेसिडुअल है और फिटेड वैल्यू है। देखो ये सेम प्लॉट हमने किया हुआ है, किधर, रेसिडुअल वर्सेस फिटेड। Yes. बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्डाइज ले रहे हैं। वहां पे रेसिडुअल लिया था, वहां पे हमने रेसिडुअल लिया था, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल ले रहे हैं। तो कुछ चेंज होता है क्या, नहीं होता है। अरे तुम नॉर्मल प्लॉट बनाओ या स्टैंडर्ड नॉर्मल प्लॉट बनाओ, कुछ चेंज होगा क्या उसमें, यू आर चेंजिंग जस्ट लोकेशंस, यू आर चेंजिंग जस्ट लोकेशंस। तो इसका इंटरप्रिटेशन और फिटेड का इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हम लोग वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, इक्वल वेरिएंस की बात करते हैं, और
इसमें भी हम लोग रेसिडुअल आर स्प्रेड अलोंग विद द प्रिडिक्टर रेंज और नॉट, दैट इज होमोस्केडास्टिसिटी, मतलब वेरिएंस की बात कर रहे हैं हम। बोलो। So we बोलो। have taken root of residuals. रूट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल, या बट ये प्लॉट और वो प्लॉट सेम ही दिख रहा है ना। अगर आप प्लॉट देखोगे मुझे नहीं लगता कुछ डिफरेंस है, केवल लाइन चेंज हुआ है, देखो इस बार। बाकी तो सेम ही आ रहा है, 49 यहाँ पे आ रहा है, 35 यहाँ पे, 23 वहाँ पर भी सेम ही आ रहा है ना। देखो 49 35 सेम ही आ रहा है। आई थिंक द इंटरप्रिटेशन इज सेम इन दैट केस ऑल्सो, बट स्केल लोकेशन प्लॉट में थोड़ा सा मतलब कुछ और कंसेप्ट हो सकता है, हो सकता है। वही सर, अगर इंटरप्रिटेशन सेम रहेगा तो दो अलग अलग क्यों होंगे? नहीं अरे कभी कभी क्या होता है, कोई बोलता है ना बेटा वो सॉफ्टवेयर है ना, उसको किधर मालूम है रे बाबा, वो तो 10 प्लॉट देगा। यही वो बात। 10 प्लॉट देगा तुमको, तो उसको क्या करने का, उसके पास काम धंधा नहीं है, तुम्हारे अपने पास काम धंधा है ना, अपने को इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली करने का है ना। इसीलिए वो लोग ने ना क्या किया मालूम है, आपके अगर आप ये देखोगे एसएलआर का, अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे, उन्होंने ये प्लॉट के बारे में मेंशन ही नहीं किया है। देखो आप जाके, आपको केवल वो फर्स्ट 3 प्लॉट जो मैंने बताया ना, केवल उसके बारे में लोग ने डिस्कस किया हुआ है। इसके बारे में डिस्कस इसलिए नहीं किया है बिकॉज दिस प्लॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर रेसिडुअल वर्सेस फिटेड। इज दैट क्लियर? I hope it is clear. And if Yes, it is sir. not, if it is not clear, then you have to watch again this video. This video will be uploaded on the YouTube. Yes, any question? So this much things we have to do in this practical. So now I'm moving to my practical session. Now I'm moving to my practical sessions. Okay. So let's I hope you can understand now, and all syntax and everything is given in Canvas. Maybe very soon I'm going to upload the syntax in Canvas for this because I'm working on that. But I think questions practical I have already uploaded in Canvas, so you can just download the practical and start working on it. Okay, so I will show you first question because even the question is also tedious to understand. But I'll try to we we make you let me close everything first of all because बहुत सारा टैब आ गया है मेरी सिस्टम में, ये फिर हैंग हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। I don't want this. Okay. Plot I don't want. This I don't want. Okay, I'm just sharing the practical for this. You can see question is now in front of you. Carry out the MLR regression analysis for the following data set whose description is given below. तो मेरे पास 1 2 3 4 क्वेश्चंस मेरे पास है, और क्या बोलता है कैरी आउट एमएलआर, बाकी कुछ नहीं बोला उसने। क्या बोलता है कैरी आउट एमएलआर, मतलब मुझे मल्टीपल लीनियर इक्वेशन मॉडल एनालिसिस करना है, किसके लिए, 4 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो अभी इसमें क्या क्या कर सकते हो वो सब करो आप। तो पहला क्वेश्चन है फाइल डेटा मुझे लेना है मेमल साइज एक्सएलएस। तो अभी ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, आपके कैनवास में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक करो। प्रॉब्लम दिख रहा है। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन बड़ा करूँ क्या मैं? नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है अभी? No, sir. अच्छा, अभी दिख रहा है? क्वेश्चन का स्क्रीन शेयर ही नहीं किया है। अच्छा सर अच्छा, स्क्रीन शेयर ऑल पे कर दो सर, सब दिखेगा फिर। Yes, sir. अभी दिख रहा है? यस सर, अब आया। ओके, तो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी रीड कर दिया है, आप रीड कर लो। कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे बोलो क्वेश्चन में क्या समझा। तो 2 मिनट्स में दे रहा क्वेश्चन रीड करने के लिए, तब तक मैं आ रहा हूँ।
सर So I hope you understood the question. क्वेश्चन में क्या समझ में आया? कैन एनीवन टेल मी? यस, एनीवन? मतलब frankly speaking, this question is not in our field, but forget about. मुझे क्या समझना है? मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कि ये तो कुछ साइज की बात कर रहा है, ठीक है, कुछ तो साइज की। सर आईक्यू होगा। हाँ सर आईक्यू होगा सर, ब्रेन साइज वगैरह। हाँ हाँ, मतलब वो कुछ साइज की बात कर रहा है, साइज की बात कर रहा है, तो मतलब अगर मैं साइज की बात कहीं पर भी करूंगा तो उसका कुछ वेट होगा, उसका कुछ हाइट होगा, मतलब कुछ तो मतलब ऐसा कुछ तो एक स्पीसीज उन्होंने लिया है, और मतलब कोई एक ऐसा एक एनिमल्स लिया है, एनिमल्स लेके उन्होंने उसका कुछ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं कि ब्रेन का वेट कितना है, बॉडी वेट कितना होता है, लिटर साइज कितना होता है। ओके, तो वो लोग एक्चुअली सब कोई तो बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, डेटा दिया है। मुझे क्या प्रॉब्लम मेरा है? कोरिलेट्स ऑफ ब्रेन साइज, कोरिलेट ऑफ ब्रेन साइज। तो मुझे ये डेटा के ऊपर मुझे एमएलआर अप्लाई करना है। तो मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है, और मेरे पास कॉलम ए बी सी डी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेटा पे जाऊँगा मेरा। आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस, लेट मी शेयर द अनदर स्क्रीन, और सी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मेमल साइज का डेटा आपको इंपोर्ट करना है। आई होप you know how to import the data from any Excel or CSV file to R. So that is very simple. तो क्या करूँगा, पहले व्यू कर लूँगा डेटा। तो जैसे मैं डेटा व्यू करूँगा, देखो मेमल साइज इज नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट मेमल साइज इज नॉट फाउंड, मतलब मैंने इंपोर्ट नहीं किया। लेट मी इंपोर्ट द डेटा। सो हाउ टू इंपोर्ट द डेटा? कैन गो टू इंपोर्ट डेटा सेट फ्रॉम एक्सेल। सर कोड से करो ना सर। हाँ, सर कोड से करो ना सर, import.csv। तो उसके लिए आपको डेटा देखना पड़ेगा CSV में है कि नहीं पहला। ओके, you have to see the data। इसका एक और भी एक ये है कमांड है, आई थिंक वो मैंने बताया नहीं, चूज डॉट फाइल। देखो इसे चलता है क्या? चूज डॉट फाइल से भी शायद हम लोग शायद कर सकते हैं क्या? It is running। It's सर running है। उसके अंदर फाइल का नेम भी डालना पड़ेगा ना? नहीं, वो क्या होता है मालूम है, जब मैं चूज डॉट फाइल करूंगा ना, तो वो बोलेगा कि वो एक पॉपअप विंडो खुलता है और बोलेगा कि सिलेक्ट योर फाइल, ऐसा बोलता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे
स्टॉप चालू है, मतलब यहाँ पे कुछ तो रन हो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है कि ये इसका मतलब क्या है कि चालू है सिस्टम। सो शायद मुझे फाइल सिलेक्ट करने को बोल रहा है क्या, बट ऐसा सिलेक्ट करूँगा मैं। हाँ बोलिए। जब हम डेटा इंपोर्ट डेटा सेट करते हैं तो वहाँ पे कोड प्रीव्यू क्या आता है, तो हम उसे यूज कर सकते हैं क्या? कोड प्रीव्यू इंपोर्ट डेटा सेट पे आप क्लिक करें तो वहाँ पे राइट साइड पे बॉटम में कोड प्रीव्यू करके आता है। हाँ, जैसे इंपोर्ट डेटा सेट करेंगे ना आप, कोड डेटा सेट करना तो यहाँ से ब्राउज करना पड़ेगा फाइल आपको। जैसे ब्राउज करेंगे, एक्चुअली मैं आई कैन गो विद कोड ऑल्सो। आई विल शो यू द कोड ऑल्सो, तो मैं दिखाता हूँ आपको। let me select first memory size using the this thing. Is my file. क्योंकि पहले अपने को डेटा देखना पड़ेगा कि एक्सएलएस में है कि सीएसवी में। तो अगर मैं इंपोर्ट डेटा से डायरेक्टली कर रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ एक्सेल फाइल है। वो कुछ तो बिकॉज ये रन हो रहा है ना, इसके लिए वो आगे प्रोग्राम कर ही नहीं रहा है मेरा। सर उसको स्टॉप कैसे करेंगे? और स्टॉप नहीं होता है बेटा, वो सिस्टम है, वो सिस्टम को क्लोज करना पड़ेगा उसमें आपको पूरा। आप रन मत करो उसको ना, तो फिर हैंग हो जाएगा। और इवन आई थिंक मेरा भी पीसी हैंग हो गया अभी, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा है। सर मेरा हो रहा है। तुम्हारा हो रहा है? चूज डॉट फाइल किया तो क्या पॉपअप विंडो खुला क्या? यस सर, विंडो ओपन होगा, फिर जहाँ पे आपका डेटा सेव है वहाँ से ओपन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो यू कैन अगर आपको इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि भाई मेरा क्या फाइल है कैसा है, तो आप सीधे डायरेक्टली जाने का चूज डॉट फाइल, जैसे आप यस सर, करोगे ऑन द स्पॉट आपको एक पॉपअप विंडो। विंडो ओपन होता है। यस सर। यस सर पॉपअप। विंडो तो ओपन हुआ सर, उसके बाद पे फाइल पे क्लिक किया हाँ, और फाइल करके उसके बाद ओपन में करना हो रहा ही पड़ेगा। नहीं है लेकिन फाइल पे क्लिक किया तो क्या बता रहा है? वो तो सक्सेसफुली हो गया, अपना कंसोल में बताया वो। हाँ, तो और उसको रन फिर करो ना, अभी रन करो उसको। फाइल जो भी सक्सेसफुल हुआ ना आपका, उसका नाम डालो, वहाँ पे व्यू लिखो, व्यू मेमोरी साइज लिखो, आ जाएगा। ओके। मेरा क्यों हो रहा है ऐसा? ये नहीं दिखा रहा है मेरा। डू यू वांट टू टर्मिनेट नाउ? यस, आप जस्ट क्लोज इट दिस, currently busy यस Arish. Let me close and start again because क्या होता है कि कभी कभी हो जाता है टेक्निकल। ओके, सो नो प्रॉब्लम। क्लोज भी नहीं हो रहा है वो। सर पूरा बंद होगा तो हाँ, क्लोज भी नहीं हो रहा था। एनीवेज नो प्रॉब्लम, वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट क्या है, एक लोग को आया भी है। सो दिस इज chat. This is the file I have shared, so you can just fill it for today practical session. तो ये आज का फाइल का अटेंडेंस, आज का प्रैक्टिकल का आपका अटेंडेंस है कि कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। प्लीज डू नॉट शेयर विथ इन योर ग्रुप और एनी अदर स्टूडेंट्स। टोटल 31 स्टूडेंट्स अभी तक है, तो फटाफट इसको फिल करो। आई विल क्लोज इट इन 5 मिनट्स।
सर यहीं तक रखना है। यहीं तक मतलब? सर सेशन यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अभी टाइम है कि अभी अब एग्जाम्स है ना आपका, टीवाई बच्चों का आज, तो आई एम बिजी विद दैट। बट अभी आप पहले जो मैंने एक फाइल शेयर किया है आपको लिंक, वो फिल करो, और वो लिंक इज बेसिकली फॉर योर टुडेज अटेंडेंस फॉर प्रैक्टिकल, कि आपने एमएलआर का प्रैक्टिकल बैठा है, उसका लिंक है। सिलेक्ट प्रॉपरली और अटेंडेंस, कौन सा प्रैक्टिकल्स नेम है वो सब बराबर ये करो, सिलेक्ट करो। Anyway, so you can go with that, there is no problem. So I'm just taking that ML size ये वाला लेता हूँ। So I import it. So I'm importing from Excel for a big, browse करता हूँ। But you can go with choose dot file wala, that is also very nice. You can go with that. हाँ, data set is not find होगा। ऐसा कैसा? Import हुआ भी नहीं। Can you see now import? हाँ, लाओ। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो मैंने इससे किया, import data set से किया, but you can go choose dot file, you can go with that also, you can just work on that. And अगर आप डेटा समझोगे तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा। तो gestation period is 30, you can means it is days, मतलब 36 days का कुछ तो लोग का पीरियड होता है। ब्रेन वेट इतना दिया है, बॉडी वेट इतना दिया है, एवरेज लीटर साइज मतलब इतना, ओके मतलब ये डेटा मेरे पास है। और स्पीसीज का नेम है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स का नाम दो लोगों ने दिया हुआ है। तो अपने को ये ज़्यादा डीपली डेटा समझना नहीं है। अपने को क्या करना है, इसके ऊपर अपने को इसके ऊपर एनालिसिस करके बताना है कि इसमें हम लोग लीनियर मॉडल फिट करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा है, व्यू डॉट मेमल साइज ये और डेटा सेट में अपने को एक यहाँ पे लाइब्रेरी मास करना है, लाइब्रेरी मास। तो ये लाइब्रेरी मास क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज लाइब्रेरी मास? व्हाट इज दैट? व्हाट इज द रोल ऑफ मास? Sir, mass is packaged like Doppler. ओके, मतलब अगर मुझे एमएलआर अप्लाई करना है तो मुझे इसका क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी मास पैकेज इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, Yes, sir. विदाउट दैट नहीं कर सकता हूँ।
ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ये ना एक फंक्शन होता है जिसके अंदर मॉडर्न अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स विथ एस, मॉडर्न अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स विथ एस, तो लोग ने फंक्शन का नाम दे दिया मास, तो फंक्शन का नाम दे दिया मास। मतलब बेसिकली वो एक पैकेज है जिसके अंदर आई कैन से बहुत टाइप के फंक्शंस अवेलेबल होते हैं और उसके ऊपर आप वर्कआउट करोगे तो और इन्फॉर्मेशन निकल सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा जनरलाइज लीनियर मॉडल है, और कैन से लॉगरिथमिक है, प्रिडिक्टिव है, मतलब मास अगर आप कॉल करोगे एक बार तो आप बहुत सारा पैकेजेस, उसके अंदर जो जो पैकेजेस रहेगा आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हमको सर उसको मास का फुल फॉर्म क्या बोले आपने? मॉडर्न अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। मॉडर्न अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स विथ एस। क्या दिखा रहा है आपको, क्या दिखा रहा है मास का? नहीं सर, ओके। मॉडर्न अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स विथ एस, वही होता है ना मास? वो पिक्चर वाला मास नहीं रे बाबा अपना। Okay, I think everybody filled the form. Anyone is remaining? I think 25 students filled the form. बाकी को अटेंडेंस नहीं चाहिए, 31 स्टूडेंट्स है, 6 are remaining. Do it fast. क्योंकि वो बंद हो जाएगा तुम्हारा 3 मिनट में, 2 मिनट और बाकी है। टाइमर only 5 minutes are. Okay. मैं किधर हूँ? ओके मैं इधर। तो मैं लाइब्रेरी कॉल कर दिया, अब मुझे नेम्स देखना है। नेम्स इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे आई वांट टू नो अबाउट माय वेरिएबल। तो वेरिएबल का नाम जानने के लिए, तो ये वेरिएबल का नाम है, आप नहीं भी जानोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था? स्टोरिंग द डेटा एज वी हैव सीन फॉर द दिस केस। इसके लिए किधर गया वो? आई क्रॉस मेमोराइज दिस वन। तो पहले मैंने क्या किया? स्टोरिंग डेटा किया। तो सेम थिंग मैं इसके लिए भी करूंगा, क्योंकि मैं बार बार गेस्टेशन पीरियड, ब्रेन वेट, बॉडी वेट बार बार नहीं लिख पाऊंगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल में। अभी ये वेरिएबल में आप स्टोर करोगे तो प्रॉपरली स्टोर करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने y2 और यू कैन टेक y1, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक y। तो y2 मैंने वेरिएबल लिया और उसको मैंने स्टोर किया कि ये मेरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, y मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरा जो गेस्टेशन पीरियड है दैट इज डिपेंड्स ऑन द ब्रेन वेट, बॉडी वेट और लिटर साइज। ओके, तो ये मेरा 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, उसको मैंने ये फॉर्म में लिख लिया। तो अब इसको लिखें कैसे? आप देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे देखो, आपको लिखना नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू टाइप दिस। जैसे आप यहाँ पे मेमल साइज, आप नेम्स डालोगे और $साइन लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिक सा वेरिएबल आ जाएगा। यू आर नॉट सपोज टू राइट एवरीथिंग। अगर आप लिखोगे तो सिंटेक्स देगा, तो आपको लिखना बिल्कुल नहीं है। आपको मेमल साइज जैसे लिखोगे, $साइन डालोगे, आपको उसका वेरिएबल का नाम ऑन द स्पॉट दिख जाएगा और उसको सिलेक्ट कर लेना। सिमिलरली यू हैव टू डू इट फॉर ऑल। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। So you try Yes, out sir. at Art Studio. Let me know if you have any difficulty, because ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ डॉट्स दिख रहा है, दिख रहा है डॉट्स? ये डॉट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको जब आप ये प्रॉपर मेथड यूज करोगे तो ही लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। कॉपी पेस्ट करोगे तो नहीं होगा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? सेकंड क्या था अपना? क्रिएटिंग अ मॉडल। तो हम लोग मॉडल बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू lm, मतलब मैंने मॉडल 2 लिख दिया, आप मॉडल 1 लिखो, जो भी लिखना है आपको लिखो, बिकॉज दैट इज यू कैन टेक योर नेम। डिपेंडेंट वेरिएबल टिल्डा साइन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी सब इंडिपेंडेंट है। तो मैंने इसको मैं रन करता हूँ। पहले रन कर दिया, मॉडल मैंने बना दिया, उसका मैं समरी देख लेता हूँ। चलो, समरी देखने के बाद अभी करना क्या है, देखो आपको समरी देखने के बाद आपको सबसे पहले ये पूरा उठा के
कॉपी करना है वर्ड में, ठीक है। वर्ड में कॉपी करने के बाद अपने को मॉडल बनाना है। सर हाँ बोलिए बेटा। सर 1 मिनट सर, मुझे कोड नंबर 7 दिखाइए ना। कोड नंबर 7, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब वो मैंने क्यों सर लिखा है, मैं कैसे स्टोर कर रहा हूँ वो नहीं बताया वो मैंने। नहीं सर, सर Y2 हम लोग ने सर जेस्टेशन पीरियड क्यों लिया सर? हम लोग को वहां पर तो ब्रेन साइज लेना था ना। नहीं 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 नहीं, सर हमें प्रिडिक्ट क्या करना है? वी हैव टू प्रिडिक्ट द डेज, यू हैव टू ओके प्रिडिक्ट द डेज, कितने डेज में आपका क्या होगा मालूम नहीं, वो सब इंटरप्रिटेशन उसके अंदर ही है। मतलब जो वो लोग ने मॉडल डेटा दिया उसके बेसिस पे ही है यस सर समझ कि गया। अगर मेरा इतना बिन रहेगा, इतना मेरा हाइट रहेगा, इतना मेरा वेट रहेगा, तो हाउ मेनी डेज आई विल बी गेस्टेशन। मतलब ऐसा कुछ तो लॉजिक है, मुझे ऐसा लगता है। See, since these I am taking the first time, so even I don't have the much idea about the data set, but because as a statistician we can understand कि हाँ क्या हो सकता है, तो can just imagine like। तो मॉडल बनने के बाद मेरा जो मॉडल मिलेगा, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से, कहाँ से, ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है कॉल से, पूरा वहां से लेके पूरा पूरा जितना नीचे तक दिया है सब उठा के मेरे को वर्ड में कॉपी करने का। देखो दिस इज द वे वी हैव टू राइट डाउन इन प्रैक्टिकल। तो क्या करूंगा मैं वर्ड में आऊंगा, एक नया फाइल ओपन करूंगा और मैं वहां पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। और अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा इसका, जो स्क्रीन आप देख सकते हो। ये आपको करना है सबसे पहले, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट है, अभी तक मुझे केवल यही आउटपुट मिला हुआ है। अब इस आउटपुट को मुझे कैसे इंटरप्रेट करना है, तो जो हमने अभी तक पढ़ा है अपने को वो सब इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मॉडल बनाऊंगा, यहाँ पे मॉडल बनाऊंगा। तो मेरा मॉडल क्या है, y2 इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे मॉडल है आपका x21 प्लस x22 प्लस x23, ये मेरा मॉडल बन गया। अब इस मॉडल में मुझे चेक क्या करना है, ये मेरा इंटरसेप्ट हो गया, फॉरगेट इट, और आई कैन राइट बीटा नॉट बीटा वन, ऐसा मतलब ऐसा लिख सकते हैं। तो आप बीटा नॉट लिखो, तो कैसा लिखोगे, अभी देखो ये वैल्यू बहुत बड़ा है, माइनस यू कैन से 0, मतलब बीटा नॉट का वैल्यू 0 है अप्रोक्सीमेट, प्लस x2 वेरिएबल है राइट। तो बीटा नॉट x2, तो बीटा नॉट x2 मतलब कितना हो गया, आई कैन से 0.000019, मतलब ऐसा कुछ तो वैल्यू है। तो 1.79 इंटू 10⁻⁻⁶, ये मेरा वैल्यू हो गया x2 प्लस 0.663, oh sorry I'm writing the p value, I'm writing p value, I'm supposed to write beta value, so ये मेरा estimated value है 0.12197 plus 187.05056 0.1581 minus 27 -27.7918, is that clear, is that clear? तो ये मैंने क्या किया, जैसे मैंने मल्टीपल लीनियर मॉडल में बनाता हूँ, मैंने वैसा मल्टीपल लीनियर मॉडल मैंने बना लिया है, ठीक है। अब बना के मुझे क्या करोगे, इसका बना के तुम सब चेक करो। अभी इसके बाद अभी थियरी बुक खोलने का, थियरी बुक खोल के तो ये मॉडल से आप क्या बोल सकते हो, बीटा नॉट का वैल्यू क्या है वो लिखो, बीटा 2 का वैल्यू क्या है वो लिखो, बीटा 3 का वैल्यू क्या है वो लिखो, ठीक है। 31 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, एंड ओके ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 2 मिनट में और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग मैं ओवरव्यू क्या करना है आपको, आपको अभी बीटा नॉट सब वैल्यूज लिखना है, लिख के
सबको चेक करना है कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, इसको 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 तीनों को चेक करो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। जो सिग्निफिकेंट है उसको यहाँ पे लिखो और उसको ही मॉडल में लिखो, बाकी सब रिमूव कर डालो। लिख पाओगे क्या? ट्राई करो, लिख पाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। बट दिस इज द वे यू हैव टू गो विद द MLR। ठीक है, सो विल एंड द सेशन बिकॉज अभी मेरा बिकॉज आई हैव टू शेयर द पेपर्स विद द स्टूडेंट्स, सो आई हैव अ एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, अभी ये जो भी आप एटलीस्ट जितना हमने प्रैक्टिस किया हुआ है आप उतना प्रैक्टिस करो, ओके? और प्रैक्टिस, हाँ बोलो सर वो जो P वैल्यू वहाँ पर निकला है, हाँ सर जो P वैल्यू वहाँ पर निकला है सर, वहाँ पर देखो 3 स्टार दिया हुआ था, तो एक में सर स्टार कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पूरा ब्लैंक दिया हुआ है। हाँ, तो उसको प्लान से ये करो ना, कंपेयर करो। हाँ तो सर वहाँ पर वो अल्फा का वैल्यू 1 दिखा रहा है, तो फिर सर उसका क्या नहीं, इंटरप्रिटेशन? अल्फा 1 नहीं लेने का, अल्फा 0.5 लेने का। यूजुअली 0.5 से करते हैं हम लोग। हाँ बट सर ये लोग ने तो सर 1 के हिसाब से कैलकुलेट किया है ना, 1 नहीं 1 कहाँ से ऐसा ले? नहीं ना? ना, वो अल्फा कुछ लेना देना नहीं है अपने पिक्चर में। अपने पिक्चर में क्या अल्फा का हम लोग देते हैं ना, और यूजुअली हम लोग 95 लेते हैं। यूजुअली हम लोग 95 से कंपेयर करते हैं, या फिर आप 99 से भी करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं। यूजुअली कंसिडर विद 95, मुझे ऐसा। ओके सर। तो हेलो आप, सर। हाँ बोलिए बोलिए बेटा। सर जो इसमें आप मेमल साइज डॉट एक्सएलएस फाइल है, इसको सीएसवी फाइल बना के नहीं इसको सॉल्व कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकता है? कर सकते हैं ना? हाँ, यू कैन गो विद CSV, नो प्रॉब्लम, कैन गो विद CSV। ठीक है, यस सर। हाँ। तो CSV, अगर CSV है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको XLS में, XLS है तो CSV को कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। ठीक है, बाकी सब हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जितना एटलीस्ट अभी ये हुआ है उतना थोड़ा प्रैक्टिस करो, ओके? यस सर। एंड देन वी विल Okay, sir. सी इन द नेक्स्ट क्लास। सर मैंने फीडबैक फॉर्म बाय मिस्टेक से डेटा क्लासिफिकेशन क्लिक करके सबमिट किया। अरे यार तुम लोग इतना गड़बड़ कैसा करते हो?